Yes, students, in previous video we had discussed the two method of preparation of haloalkanes, and now third method is by halogen exchange method. Halogen exchange method. In this halogen exchange means halogen atom जो है exchange हो जाएंगे. For example, its first reaction is a in this method Finn-Callistine reaction. Finn-Callistine reaction. When we take alkyl halide reacts with sodium iodide in the presence of acetone. Okay. X means chloride or bromide. So this reaction is a preparation of iodoalkanes, means RiNaX. So X should be chloride or bromide. ठीक है. The iodoalkanes are obtained by heating alkyl chloride or alkyl इसमें bromide with a concentrated solution of sodium iodide in the presence of acetone. तो iodoalkane. ठीक है. तो आयोडोएल्केन जो है किससे, अल्काइल हैलाइड और अल्काइल ब्रोमाइड react with concentrated sodium iodide in the presence of acetone. This reaction is called Finn-Callistine reaction. Clear? And second, Swart reaction. Swart reaction. Swart reaction is a preparation of fluorocompounds. Clear? In this reaction we take alkyl halide reacts with silver fluoride, means मेटल के जो फ्लोराइड्स है सिल्वर फ्लोराइड, और यू टेक एंटीमनी फ्लोराइड और मर्करी फ्लोराइड, इनमें से कोई भी एक ले सकते हो. ठीक है. इट गिव्स RF प्लस क्या होगा AgX और SbX3 और Hg2X2. Here is a X also chloride or bromide, means alkyl chloride और you take alkyl bromide. alkyl chloride या alkyl bromide लोगे मेटल के फ्लोराइड के साथ, सिल्वर यू टेक सिल्वर फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड और मर्करी फ्लोराइड, कुछ भी लोगे, यहाँ बनेगा फ्लोरो एल्केन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू टेक CH3Cl प्लस AgF, so it gives CH3, यानी CH3F should be formed and AgCl. Here suppose you take R group is ethyl group, methyl, ethyl, propyl, butyl, and halogen is chloride or bromide, silver fluoride. So methyl fluoromethane will be formed. Or you take suppose you take ethyl group, then fluoroethane will be formed. जो भी R group लोगे उसके अकॉर्डिंग बनता जाएगा. तो यहाँ आ गया fluoromethane. And now next four method from alcohol. From alcohol. Alcoholic group is ROH, means ROH alcohol से convert होगा RCl में. OH group जो है converted into Cl group. ठीक है. By the reaction of halogen acid. तो first ROH plus we take HX. HX means halogen acid. Halogen acid. तो OX और यहाँ से क्या गया H. It gives RX means haloalkane plus H2O. Haloalkane. Clear? तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल. अब सपोज वी टेक प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल मीन्स मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, कोई भी अल्कोहल जिसमें कि कार्बन एक कार्बन से अटैच हो या अकेला हो. तो सपोज हमने मिथाइल ले लिया या अब इस पर इथाइल ले लेते हैं. तो CH3CH2OH reacts with HCl. ठीक है. In the presence of anhydrous ZnCl2. Anhydrous ZnCl2. What is the role of anhydrous ZnCl2?
डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी मॉइस्चर को रिमूव करता है, OH फ्रॉम एयर, H यहाँ से OH को रिलीज करने का काम करेगा, तो इट गिव्स CH3 CH2 Cl। क्या बन गया? क्लोरो इथेन और इथाइल क्लोराइड, क्लोरो इथेन, ठीक है, और यू कैन से इथाइल क्लोराइड। तो प्राइमरी का इसमें जो है सिंपल, यानी दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल मीन्स इथेनॉल। We take 2 degree alcohol, CH3C, CH3OH. Same reaction, concentrated HCl, यहाँ पे लिख दो HCl gas, anhydrous ZnCl2 means secondary alkyl halide will be formed. CH3H means 2-chloropropane, 2-chloropropane हो गया। Counting start from here 1 2 3, or you can say 1 2 3. And now this is a 2 degree alcohol. 2 degree alcohol means कार्बन 2 alkyl group से अटैच है, और with it propane 2 all, propane 2 all, E drop हो जाएगा तो propane 2 all. Now we take tertiary alcohol, CH3C, CH3, CH3. In tertiary alcohol नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैटालिस्ट, इसकी जरूरत नहीं है, तो रिएक्शन में तब भी होगी CH3C, CH3, CH3, देन क्या आ जाएगा Cl प्लस H2O। मीन्स जो यहाँ पर आप ले रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स ये बन गया आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 chloro 2 methyl propane. This is a tertiary alkyl halide, secondary alkyl halide, primary alkyl halide, ठीक है। तो it means tertiary alcohol are more reactive, यानी 3 degree alcohol, tertiary alcohol are more reactive than secondary और primary, क्योंकि कैटालिस्ट की जरूरत ही नहीं थी। तो tertiary alcohols are more reactive than secondary alcohol and primary alcohol, because in tertiary alcohol there are 3 electron releasing group. C and OH bond is more polar, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ 3 जो है आपके रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, R। इन टर्शियरी अल्कोहल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सो C और OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन सेकेंडरी और प्राइमरी। यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। तो टर्शियरी जो ये होंगे कार्बोकेटाइन बन जाएंगे, इनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, किसमें, सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपैरेटिवली। तो सेकेंडरी, इन केस ऑफ सेकेंडरी देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मींस इसके कंपैरेटिवली जो है लेस स्टेबिलिटी होगी इसमें। और इन द केस ऑफ प्राइमरी में तो सिर्फ एक ही है एल्काइल ग्रुप, या एक भी नहीं है, तो इसके कंपैरेटिवली जो है इसमें और लेस स्टेबिलिटी होती जाएगी। तो टर्शियरी अल्कोहल आर मोर स्टेबल, means tertiary carbocation is more stable than secondary or primary. The reactivity of tertiary alcohol is more than secondary or primary. Tertiary alcohol more reactive होते हैं because in case of tertiary C and OH bond is more polar than secondary or primary. Yes, so students, reactivity of alcohol में tertiary, secondary और primary, और reactivity of halogen acid में HI, then HBr और HCl. नाउ द ब्रोमो एल्केन, अभी तो आपने क्लोरो एल्केन बनाया था, ब्रोमो एल्केन्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, विद अल्कोहल। तो यू टेक CH3 CH2OH, इथेनॉल प्लस HBr in the presence of concentrate H2SO4. Concentrate H2SO4 act as dehydrating agent, मॉइस्चर को रिमूव करेगा, सेम OH और यहाँ से H, सिंपल रिएक्शन। तो ये CH3 CH2Br प्लस H2O मीन्स ब्रोमो इथेन। और रिएक्शन कैसे हो सकती है, मीन्स जैसे इथेनॉल CH3 is a A और B CH3 CH2OH,
reacts with KBr, potassium bromide plus H2SO4. There is a H2SO4 act as catalyst और यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस देखो, हीट यहाँ पर कैटलिस्ट ऊपर दिया हुआ है और यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इट गिव्स CH3, प्रोडक्ट शुड बी सेम, CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन ही बना, देखो CH3 CH2 Br आ गया, क्लियर। OH के साथ 1H, क्योंकि H2SO4 किसकी तरह बिहेव करेगा, दिस इज अ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। वॉट मॉइस्चर को रिमूव करेगा, OH यहाँ से चला गया, Br ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, KHSO4, तो यहाँ आ जाएगा KHSO4, KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट, और हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज अ ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एल्केन बनाने का मेथड हो गया। नाउ आइडो एल्केन्स कैसे बनेंगे, फ्रॉम एल्कोहल, तो CH3 CH2 OH प्लस HI, ठीक है। तो HI के साथ इट गिव्स CH3 CH2I प्लस H2O। तो आइडो एल्केन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इथेनॉल विद ये HI, तो HI इज हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है, दिस इज इथेनॉल। नाउ ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड मीन्स H3PO4, और यहाँ गया आइडो इथेन, डिफरेंट है, इथेनॉल की HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, और दिस इज द HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो यहाँ गया आइडो इथेन। और रिएक्शन को आप कैसे शो कर सकते हो, तो CH3 CH2OH प्लस KI, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H3PO4, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, तो सेम CH3 CH2I प्लस सेम रिएक्शन जाएगी, OH और H, वाटर चला गया, और प्रोडक्ट क्या आ गया, KH2PO4, सेम वही आ गया ना, PO4 H2, और यहाँ आ गया K, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, पोटेशियम बाई या डाई जो भी आपका, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। पोटेशियम पूरा लिखा, पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो स्टूडेंट दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मीन्स हैलो एल्केन्स। स्टूडेंट्स दो इसके और रह गए अल्कोहल के साथ, PCl5 और PCl3 की रिएक्शन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। Now the reaction of alcohol PCl3 और reaction of alcohol with PCl5, यानी PCl3 जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है PbR3 और Pi3 से, तो PCl3 के साथ रिएक्शन एंड PCl5 के साथ, and the reaction of alcohol with SOCl2 is thionyl chloride, और PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। जैसा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो ROH मीन्स RCl, ठीक है। यहाँ Cl के 3 हैं तो आप 3 ले लो यहाँ पर, 3RCl, बच क्या गया, 3 जो है आपके OH बच गए, 1 P बच गया, तो H3PO3, क्लियर। फिर से समझा देती हूँ, यहाँ 3 Cl थे तो 3 ले लिया आपने, तो यहाँ आ गया 3RCl,
तो 3 आपके पास क्या हो गए OH और 1 फॉस्फोरस है, तो H3 3 हाइड्रोजन PO3, क्लियर। यहाँ पर आपके आ गया H3PO3, तो H3PO3 इज फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 इज phosphorus acid, phosphorus acid. H3PO4 is phosphoric, H3PO3 is phosphorus. Now reaction with PCl5, it gives RCl, there are 5 Cl, RCl plus POCl3 plus HCl, तो RCl अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड. Now this reaction is important. This method is better method because in this method we obtain pure alkyl halide plus SO2 plus HCl. SO2 और HCl दोनों के दोनों गैशियस फॉर्म में है, तो इजीली जो है एस्केप कर जाएंगे, तो यहाँ पर प्योर मिलता है. तो दिस मेथड इज बेटर मेथड बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द reaction is SO2 and HCl are gaseous and can easily escape and leaving behind alkyl halide. सिर्फ हमारे को यहाँ पर क्या मिलेगा, alkyl halide मिल जाएगा, alkyl halide, ठीक है. तो ये दोनों की दोनों गैशियस फॉर्म में है. तो आपके इतने ये मेथड थे. फर्स्ट आपने प्रिपेयर किया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्केन, एल्कीन्स, ठीक है. सेकेंड फ्रॉम एल्कोहल से कर लेते हैं. फ्रॉम एल्कोहल में रिएक्शन विद हैलोजन एसिड HCl, HBr, HI, देन PCl3, PCl5, SOCl2. थर्ड halogen exchange method in Celestine reaction we obtained iodo compound, iodoalkane, and fourth is Swart reaction. In Swart reaction we obtained fluoro compounds, ठीक है. और एल्कीन से आपने पढ़ लिया था कि फ्रॉम एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इट इज अप्लाई फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. तो कहीं ना कहीं आपकी ये प्रिपरेशन जो जितने भी रिएक्शंस हैं वो यूज होती हैं बीच बीच में कन्वर्जन में, और साथ साथ आपको प्रिपरेशन के सारे स्टेप्स जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए.